Hello, dear children. Welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are hale and hearty. Hope all of you are doing great. बच्चा टर्म 2 पास आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना। और टर्म 2 के लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 के लिए विक्ट्री फॉर बोथ सीरीज के आज मैं 4th वीडियो से को लेकर आपके पास आई हूँ, जिसमें मैं आपको सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड हुए सब सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम की एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन शेयर करूँगी. दिस विल बी पार्ट 1 of this analysis and explanation video, in which I will be covering up section A of your question paper, question number 1 to question number 6, and section B, question number 7 to question number 12. This I am doing deliberately to keep the length of the video short, and the paper is subjective and its explanation, its analysis is going to take time. That's why I have decided to come up with this in 2 parts. Before I start with the video, I recently also uploaded the CBSE sample question paper blueprint explanation. Understanding the blueprint video already portal पर है, मेरे channel पर है, आप उसको देख लीजिएगा, so that you get a thorough understanding of the blueprint of this paper as well. Okay, so let's move into the video and let's see what all material we require to study this. So इसके लिए I have opened I've opened up my Edge browser and I have opened up 4 things for you in 4 different tabs. First one is your sample question paper. Fine. Page number 1 जो उसका है बच्चे, वो blueprint of this sample question paper है that I have already covered. है ना, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ. सो मैं पेज 1 को कवर नहीं करूंगी. इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर से वी विल बिगिन फ्रॉम पेज नंबर 2, where we'll get the actual sample paper for term 2. जो question paper है पेज नंबर 2 से start होता है. So here I'm going to start my this thing explanation with. I'll also share the marking scheme of this question paper, which has also been released by CBSE along with the question paper, sample paper. This marking scheme is very important because it will not only give us the answers, it is also going to tell us how marks are allotted against each question. Fine. Then for your explanation, I have opened employability skills book, main book, which is the main textbook of employability skills, because part A, the section A will be based on employability skills, which is going to carry 5 marks in your board exams. And I've also opened up 402 textbook of IT, which is this time you all know subject skills के लिए textbook अलग है, employability skills के लिए textbook अलग है. In employability skills you are going to get 2 units. You have to prepare 2 units, children, entrepreneurial skills and green skills. Whereas in subject skills you have to prepare 2 units again. That is unit number 3, which is database management system, and you have to prepare unit number 4, which is web applications and security. So ये सारा आपका डिस्क्रिप्शन ब्लूप्रिंट में था जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना. सो अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के साथ. और जैसे मैंने टर्म 1 के टाइम भी किया था कि आई हैड showed you the sample paper, I had showed you the answer, and I also told you कि आंसर बुक में, क्वेश्चन जो है वो बुक में किस पेज से पिक किया गया है. My only emphasis is to make you all fall into the habit of reading the textbooks, children. Reading the textbooks is very, very important. It's as important as practicing with the question papers, but the concept should be first prepared from the books, because you never know from which paragraph, from which line, which word of the book the question is going to be framed from. फाइन. सो ये हम इस वाले वीडियो में भी ये सिलसिला जारी रखेंगे और मैं आपको पेज नंबर्स भी टेक्स्ट बुक से हैंड टू हैंड बताऊंगी, ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट रीड द जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीबीएसई. और उससे पहले हम देख लेते हैं, सीबीएसई ने बोला है कि स्किल एजुकेशन का ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईटी सब्जेक्ट. इट्स स्किल बेस्ड सब्जेक्ट. आईटी हमारा पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड इज 402 बच्चा. सेशन फॉर क्लास 10th इज 2021-2022. ठीक. टर्म 1 आप ऑलरेडी दे चुके हो. सो दिस इज सैम्पल पेपर इज बेस्ड ऑन टर्म 2. ठीक है, टर्म 2 के सिलेबस पर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपका है. लेट्स सी व्हाट आर द मेन हाइलाइट्स ऑफ दिस. मैक्सिमम अलाउड टाइम वुड बी 1 hour बच्चा.
ठीक, 60 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 25 मार्क्स आप ऑलरेडी दे चुके हो, ये थ्योरी एग्जाम है. लेट्स रीड द जनरल इंस्ट्रक्शंस. जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड that, point number 2 से देखते हैं that this question paper is divided in 3 sections, section A, section B and section C. जनरल इंस्ट्रक्शंस को CBSE ने पहले ही लिखा है कि प्लीज रीड देम केयरफुली. रीडिंग टाइम में आपको अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज आपके टिप्स पर होनी चाहिए जनरल इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका वहां पर टाइम, एक्चुअल एग्जामिनेशन में टाइम कम स्पेंड होगा. ठीक, सेक्शन ए विल कैरी 5 marks, ठीक है ना. इट विल हैव 6 questions. इट विल बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से 6 questions आएंगे, आपको टोटल 5 अटेम्प्ट करने होंगे, 5 marks के ये क्वेश्चंस होंगे. अब ये किस तरीके से होंगे, उसका फर्दर बाइफिकेशन CBSE हैज गिवन. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 विल हैव 1 mark क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 6 क्वेश्चंस में से 1 to 4 1 mark के होंगे, आपको उनमें से एनी 3 अटेम्प्ट करने. ठीक, क्वेश्चंस नंबर 5 and 6 जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं वो 2 marks ईच के होंगे, आपको उनमें से एनी 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनिट वाइज क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फिर भी एक बार ये आप जल्दी से देख लो कि जैसे आपका है ना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से, मतलब टोटल हमारे पास जो 1 mark के हैं वो 4 क्वेश्चंस होंगे ना बच्चा. दे विल बी फ्रॉम both the chapters, 2 questions from both the chapters, 2 questions each from both the chapters. ऐसे 2 marks वाले भी 1 question each from both the units. ठीक है ना, entrepreneurial and green. ठीक, तो उसको आप याद रखना कि 50-50 की वेटेज से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं. फिर सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी इज गोइंग टू बी ऑफ 12 marks. ठीक, and it will have 12 questions which will be based on subject specific skills. ठीक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर बेस्ड 12 क्वेश्चंस आएंगे. इट इज गोइंग टू कैरी 12 marks. सो 12 + 5 17 marks के दोनों सेक्शंस होंगे. इसकी फर्दर बाइफिकेशन देखते हैं. सेक्शन बी कहते हैं 7 to 12 क्वेश्चंस आर 1 mark क्वेश्चंस. अटेम्प्ट एनी 4. सो 7 से 12, 7 8 9 10 11 12 6 क्वेश्चंस आएंगे 1 mark के, आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे. ठीक है ना, तो 4/6 क्वेश्चंस आपको यहाँ अटेम्प्ट करने होंगे बच्चा. फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 to 18 कितने हो गए, 13 14 15 16 17 18, फिर से 6 क्वेश्चंस हो गए बच्चा, उसमें से भी आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है ना, तो 6 क्वेश्चंस में से भी एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक, तो इस तरीके से आपके 1 mark के हिसाब से देखा जाए तो ये 4 marks का हो गया, और 4 marks के हिसाब से देखा जाए, 2 marks के हिसाब से देखा जाए, सो 4 × 2 8 marks. तो ये टोटल आपका हो गया 12 marks के होंगे. टोटल क्वेश्चंस तो 12 होंगे. अटेम्प्ट आपको एनी 8 करने हैं, मतलब 8 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 8/12. 4 आपको 7 to 12 में से अटेम्प्ट करने हैं, 4 ही आपको 13 to 18 में से अटेम्प्ट करने हैं, और ये टोटल वेटेज कैरी करेगा ये सेक्शन बच्चा 12 marks. ठीक, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो कवर करूंगी ना वो ये वाला पार्ट कवर करूंगी. सेक्शन ए पूरा पार्ट 1 में, और सेक्शन बी का मैं पॉइंट ए कवर करूंगी बेटा. तो बचा हुआ जो वीडियो सेकंड पार्ट आएगा ना, जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम ये रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे, यानी बी पार्ट आएगा आपका पार्ट 2 में. और सेक्शन सी भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन सी होगा आपका 8 marks का, जिसमें 3 competency based questions होंगे. So competency based questions were also asked in term 1, है ना. तो यहाँ पर भी कंटिन्यूड है, वही ट्रेंड कंटिन्यू रखा है CBSE ने. competency based, case study based, कोई situation based questions होंगे, and you will be getting 3 such questions. ठीक है, सो देयर नंबर वुड बी 18 तक हमारे सेक्शन बी में आ गए थे ना, तो अब नंबर होंगे 19 20 21 यानी 3 क्वेश्चंस 4 marks के होंगे ईच. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2. सो जब आप 4 marks से कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो टोटल मार्क्स कितने हो गए बच्चा, 8 marks हो गए. सो अब आप देख लो यहाँ से, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है आपका 5 + 12 17 17 + 8 25 marks का आपका बच्चा ये टर्म 2 का थ्योरी एग्जामिनेशन होगा. अब सीरियसली CBSE ने बोला है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें सेक्शन वाइज, एंड मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ईच सेक्शन और क्वेश्चन अगेंस्ट द क्वेश्चन. ठीक है ना, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट द सेक्शन और क्वेश्चन. ठीक,
So on this note, let us begin section A now बच्चा. And section A, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि मैं आपको हर बुक नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी जहां जहां भी बुक से क्वेश्चन पिक हुआ आई विल बी टेलिंग यू. सो सेक्शन ए पे आ जाते हैं. सेक्शन ए हमारा हमने देख लिया 5 मार्क्स का होगा. 3 मार्क्स के हमारे 1 मार्कर्स होंगे और 3 1 मार्क हमें अटेम्प्ट करने 3 मार्क के 1 मार्कर्स होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा हमारा वो मतलब आपका 2 मार्क्स का होगा. ठीक है ना. तो आपके टोटल हो जाएंगे 5 मार्क्स. ठीक. सो देख लेते हैं बच्चा इसके. आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. 1 into 3 3 मार्क्स. ठीक. तो 4 में से अब हमें 3 1 मार्कर्स अटेम्प्ट करने. तो पहला पढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. 1 मार्क का क्वेश्चन है. गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. मार्किंग स्कीम देखते हैं क्या कहती है. मार्किंग स्कीम ने कहा कि आप आंसर 1 का, ठीक है, इसका आंसर मार्किंग स्कीम में आता है बच्चे दे आर कॉन्फिडेंट. दे आर कॉन्फिडेंट. 1 मार्क मिलेगा अगर आप भी एक लिख देते हो क्वालिटी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की. 1 मार्क. दे आर कॉन्फिडेंट. अब पहले देख लेते हैं. मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ले चलती हूँ और क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर पेज नंबर 99 मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है बेटा. ठीक है. क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर में दे हैव गिवन, देखो कौन कौन सी क्वालिटीज दी हैं. कॉन्फिडेंट. एंटरप्रेन्योर इज कॉन्फिडेंट. ही ट्राइज न्यू आइडियाज. ही इज इनोवेटिव. ही इज पेशेंट because he knows that hard work and will soon be followed by success, but then it is going to be a gradual process. One has to be patient. Then he will be creative. Obviously he'll always offer different solutions to the problem. So ये 4 qualities given है बच्चा. मार्किंग स्कीम में कॉन्फिडेंट आया है. आप 4 के 4 लर्न करो क्योंकि इनमें से कोई भी आपका आंसर करेक्ट अगर आप लिखते हो इनमें से कोई वो आपका करेक्ट माना जाएगा. सो एनी वन क्वालिटी यू हैव टू मेंशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. नेम द टर्म यूज्ड फॉर फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट एनीवन, about something. Name the term used for false belief or opinion about something. 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे. ठीक. सो फॉल्स बिलीफ, गलत धारणा, गलत विश्वास, गलत कहते हैं ना, आपने कुछ गलत अपने माइंड में एक मिसकंसेप्शन बना लिया. फॉल्स बिलीफ पर आप विश्वास करो जो हकीकत में जो चीज नहीं होती पर आप उसे सच मान लेते हो, है ना. तो वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस बनते हैं अगर हम फॉल्स ओपिनियन बना लें और रिजिड रहें उस चीज पर. तो उसका आंसर सीबीएसई क्या देती है. देखो सीबीएसई ने इसका आंसर दिया है मिथ. ठीक है ना, मिथ. तो मैं आपको ले चलती हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में और दिखाती हूँ. और ये पहले और बता दूं आपको कि 1 मार्क मिलेगा अगर आप इसका करेक्ट टर्म देते हो. उन्होंने आपसे टर्म पूछा कि अगर फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन हम किसी बारे में बना लें तो उस टर्म को क्या बोलेंगे. दैट इज मिथ. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मिसकंसेप्शन भी हो सकता है क्योंकि बुक में मेंशन्ड है. सो चलते हैं आपके स्टडी मटेरियल में और मैं आपको ले चलती हूँ बच्चा पेज नंबर 104 पर. ठीक है ना. पेज नंबर 104 पर चलती हूँ और यहाँ देखना आपके पास ये आएगा. मैंने मार्क किया हुआ है. अ मिथ और अ मिसकंसेप्शन इज अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट एनीवन. ये आ गया ना, मिथ या फिर मिसकंसेप्शन. ये भी एक टर्म है. मिथ और अ मिसकंसेप्शन, इट इज अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग. सो यहीं से सीबीएसई ने आपको आंसर दिया है. 1 मार्क आपको मिलेगा अगर आप इसको करेक्टली लिखते हो. पेज नंबर नोट कर लिया आपने. दैट इज पेज नंबर 104. Fine. Next, let's move to the third question, which reads, give any one practice or sustainable process that is being used to help preserve the environment. ये I just would wait for a moment and I'll tell you, ये जो शुरू के 2 questions थे ना बेटा, ये आए entrepreneurial skills से. ठीक. तो entrepreneurial skills से आए. अभी जो बचे हुए 2 questions हैं 3 और 4 1 मार्क के, ये आपके पूछे जाएंगे green skills से. So total 4 questions होंगे 1 मार्क वाले. आपको any 3 अटेम्प्ट करने हैं, है ना. तो ग्रीन स्किल्स से देखते हैं क्या पूछ रहा है सीबीएसई. सीबीएसई इज आस्किंग गिव एनी वन प्रैक्टिस और सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट. आंसर देखते हैं इसका बेटा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आंसर 3 सीबीएसई ने दिया. वन सच प्रैक्टिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. अनदर एग्जाम्पल इन्होंने दिया वर्मी कंपोस्टिंग एटसेट्रा. 1 मार्क मिलेगा. आप कोई एक प्रैक्टिस दे देते हो.
ऑर्गेनिक फार्मिंग दे दो, वर्मी कंपोस्टिंग दे दो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दे दो, और जल्दी से दिखा देती हूँ ये इन्होंने कहाँ से पिक किया आपके स्टडी मटेरियल से। सी 117 पेज नंबर 117 पर अगर मैं ले चलूँ तो ग्रीन स्किल्स चैप्टर ओपन हो जाता है और ये आपके देखो सस्टेनेबल प्रोसेसेस मेंशन्ड है, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, these are some practices that help preserve the environment. फाइन, तो पेज नोट कर लो आप 117। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं 1 मार्क के लास्ट क्वेश्चन ग्रीन स्किल से जो है, गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। सोलर पावर इंडिया में लार्ज स्केल पर कहां प्रोड्यूस होती है? 1 मार्क में सीबीएसई ने आपसे पूछा। आंसर देखो बच्चा इसका, इट इज चारंका, गुजरात सोलर पार्क। ठीक, 1 मार्क मिलेगा आपको सही आंसर देने का। ठीक, सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन सोलर पावर का एक एग्जांपल दिया, चारंका गुजरात सोलर पार्क। देखना चाहोगे कहां पे गिवन है ये? देखो पेज नंबर 115 पर अगर मैं आपको लेकर आती हूं, सो 115 पेज पर ये आ गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर, मेजर एग्जांपल इज चारंका गुजरात सोलर पार्क। गॉट इट? सो ये आपका पेज नंबर 115 से क्वेश्चन बना। नाउ जस्ट सी how much CBSE is picking up the 1 markers, आपको कितना थरो रीडिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। सो ये हमारे, अगर आप ये ठीक लिखते हो तो 1 मार्क मिलेगा, एंड दिस कंप्लीट्स अस विद द 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन A फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। वी आर नाउ रेडी टू मूव टू the 2 marks question. Any one question you have to answer out of the given 2 questions. Each question is of 2 marks, so 2 into 1 2 marks. ठीक, अब इसमें देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन आया है एंटरप्रेन्योरियल स्किल से 2 मार्क्स का, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरियल स्किल से। और जो सेकंड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का वो आया है आपका बेटा ग्रीन स्किल से। सो दोनों चैप्टर से एक एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरियल स्किल में अभी इन्होंने क्वालिटी मांगी थी, एक मार्क में एक क्वालिटी, अब 2 मार्क्स में 2 फंक्शंस मांग रहे हैं एंटरप्रेन्योर के। सो मार्किंग स्कीम में देखते हैं क्या आंसर आया हमारे पास। मार्किंग स्कीम में कहते हैं एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर they make decisions, they have to make decisions, obviously making decisions is one function, मैनेजिंग द बिजनेस इज सेकेंड फंक्शन। और मैं यहाँ बता देती हूँ 2 मांगी है ना बच्चा, सो ये 1 मार्क ईच होगा आपका, 1 मार्क ईच होगा, 1 मार्क इसके लिए, 1 मार्क सेकेंड फंक्शन के लिए, और तब ये जाकर आपका टोटल 2 मार्क्स का होगा। सो 2 फंक्शंस यू हैव टू गिव, दे विल कैरी 1 मार्क ईच। ठीक, सो चलते हैं पेज नंबर 103 पर बच्चे। 103 पर अगर मैं आपको ले चलती हूँ तो आप देखना यहाँ पर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर गिवन है, और ये मैंने मार्क किया है, मेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइड इनकम, टेकिंग रिस्क, क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। तो इन 5 फंक्शंस में से आप कोई 2 लिखोगे, आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम में पहले 2 को मेंशन किया गया है। ठीक बेटा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द UN, गिव एनी 2 वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ग्रीन स्किल से क्वेश्चन है, SDGs हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं, उसमें रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज वन ऑफ द SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2 तरीके बताने हैं जिससे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जा सके। जब हम इक्वालिटी होती है बराबरी से ट्रीट करना, और इनइक्वालिटी क्या होती है? बिना बराबरी के ट्रीट करना, अलग अलग लेवल पर ट्रीट करना, भेदभाव करना। इनइक्वालिटीज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम जा सकें, ठीक है ना। तो आंसर देखते हैं मार्किंग स्कीम में क्या आया बेटा। 2 easy ways to reduce inequalities are be helpful to each other, एक दूसरे की मदद कीजिए, and be friendly with everyone, किसी में भी छोटा बड़ा, कास्ट के बेसिस पर, किसी भी तरीके पर, जेंडर के बेसिस पर कोई डिफरेंशिएशन मत कीजिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, ट्रीट एवरीवन एट पार। ये 2 तरीके बताए गए हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फिर वैसे ही होगा, 1 मार्क का 1 और 1 मार्क का 1, यानी 2 वेज हैं, 1 मार्क ईच होंगी, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखिए बुक में ये कहाँ गिवन है, लेट अस गो। मैं ले चलती हूँ आपको पेज नंबर 121 पर। 121 पर SDGs डिस्कस हो रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है आपका ग्रीन स्किल्स का, जरूर करिएगा इसको। रिड्यूस इनइक्वालिटीज ये दिए हुए हैं पॉइंट, सीबीएसई ने पहले 2 पॉइंट्स पिक किए, बी हेल्पफुल एंड बी फ्रेंडली। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं, इंक्लूड एवरीवन व्हाइल यू आर वर्किंग और प्लेइंग, है ना, सबको इंक्लूड कीजिए, टीम बनाइए, अच्छे से टीम वर्क के साथ मिलजुल कर खेलें, काम करें। हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग एवरीवन वेदर दे आर स्मॉल और बिग, छोटे बड़े का आप वो ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, जेंडर गर्ल बॉय का डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्लास और क्रीड कास्ट किसी पर भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें। सो इस तरीके से इनइक्वालिटीज जो हैं, है ना, जो एक दूसरे के प्रति मतलब हमारे मन में जो भी भेदभाव हैं वो मिटेंगे और सब लोगों को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक बेटा, तो 121 पेज को आप नोट कर लो, इस पर ये आंसर गिवन है। सो विद दिस वी फिनिश सेक्शन ए which was from employability skills and it is going to carry 5 marks in your paper. Now I'm moving to section B and in this part 1 video I'm going to cover up question number 7 to 12. These will be 1 mark questions. देख लेते हैं. So answer any 4 questions out of the given 6 questions. ठीक, 1 into 4 4, ये वाला पार्ट, ठीक, 4 1 मार्कर सेक्शन बी की। ठीक बेटा, तो इसमें अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस किस चैप्टर से हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 7, 8, 9 दे आर फ्रॉम दिस थिंग यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है ना। 10, 11, 12 है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो डीबीएमएस से ये 3 क्वेश्चंस हैं। 3 1 मार्कर्स फ्रॉम वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, 3 1 मार्कर्स फ्रॉम डीबीएमएस। करने आपको कितने हैं 6 में से? एनी 4। चलें स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 7, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रैवल ओवर फोन लाइन्स। 1 मार्क का आएगा। द आंसर टू दिस इज मोडेम। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है सीबीएसई। सेक्शन बी पर हम आ गए ना बेटा, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ टर्म पूछा गया है। सो नेम द डिवाइस, है ना, कौन सी डिवाइस जो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है सो दैट डेटा कैन मूव ओवर फोन लाइन्स। द आंसर इज मोडेम। 1 मार्क मिलेगा आपको उसका करेक्ट आंसर लिखने के लिए। ठीक, और ये देखो मैं अब सब्जेक्ट स्किल्स की बुक मैं ओपन कर लेती हूँ और मैं आपको ले चलती हूँ बच्चा पेज नंबर 172 पर। जस्ट गिव मी अ मिनट। पेज नंबर 172 पर। सो यहाँ आप देख लो, ये गिवन है मॉडेम, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स टू फॉर्म एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रैवल ओवर फोन लाइन्स। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बुक से पिक किया गया है। ठीक, सो दिस इज गोइंग टू बी पेज नंबर 172। 1 मार्क दिलाएगा आपको ये क्वेश्चन। अगले बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। डैश की, ठीक है ना, दे आर सेइंग डैश की इज an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disabilities. ठीक, तो accessibility functions जो हैं वो आपके वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी में का पहला सेशन है, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। सो आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी की है विच इज गोइंग टू हेल्प पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, ऐसी कौन सी की है। सो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चा। इसका आंसर है टॉगल की। 1 मार्क मिलेगा अगर आप इसको ठीक से लिखते हो, इस आंसर को करेक्टली लिखते हो। बहुत सारी कीज हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं ले चलती हूँ आपको आपकी बुक के पेज नंबर 164 पर, और जहां पर आपको ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना। सो लेट्स मूव एंड सी टॉगल कीज। It is designed to help people with vision impairment or cognitive disabilities. How we can help differently abled people to access computers without any difficulty and with the same ease, है ना। तो उसके लिए जो accessibility options में vision impairment यानी जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम है, या कॉग्निटिव जिनको माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हेल्प करता है, वो होता है ऑप्शन टॉगल कीज। सो ये आपका आंसर में भी यही आया। 1 मार्क मिलेगा आपको उसको करेक्ट आंसर करने के लिए। ठीक बेटा, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड डैश नेटवर्क्स। आप देख लो ना कि
टर्म भी पूछ रहे हैं, 2 फिलअप्स भी आ गए अब आपके पास। सो ऐसे नेटवर्क्स जिनमें कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो स्पेशल डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रिंटिंग का हो गया या फाइल्स का हो गया, फाइल स्टोरेज हो गया या मेल देखने का हो गया या डेटाबेस स्टोर करने का बैकएंड हो गया, ऐसे। और वो जो रिमेनिंग कंप्यूटर्स हैं उस नेटवर्क के, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे नेटवर्क्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये आर्किटेक्चर है नेटवर्क का। एक पेयर टू पेयर होता है, क्लाइंट सर्वर होता है, और जिसमें पेयर टू पेयर में ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस, whereas in client server, servers are specially special systems with more computing powers, and they perform dedicated tasks and provide services to clients, which are the other less powerful, less competent systems as compared to servers. So 1 मार्क मिलेगा आपको अगर आप ये ठीक देते हो। बुक में देख लें कहाँ है ये क्लाइंट सर्वर, किस जगह गिवन है बच्चे, देख लेते हैं। क्लाइंट सर्वर बच्चा गिवन है पेज नंबर 169 पर। चलो देखते हैं। ये रहा पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से आपका ये क्वेश्चन पिकअप हुआ है। आप देख सकते हो इस चीज को फिलअप बनाया गया है। ठीक बेटा, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे ये 3 1 मार्कर्स हो गए किससे, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी से। तो अब हमारे 3 1 मार्कर्स बचे हैं डीबीएमएस से। देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कहता है। मेंशन एनी 2 इंटीजर डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल फील्ड इन डेटाबेस। 1 मार्क में 2 इंटीजर डेटा टाइप्स बताने हैं। इंटीजर यानी ऐसी वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा, वो होल नंबर्स होंगे। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो आपकी बुक में गिवन है बच्चा, वो न्यूमेरिक में इंटीजर भी इंक्लूड किया है, बूलियन भी इंक्लूड करा है, और उसमें फ्लोट टाइप वैल्यूज भी इंक्लूड करी हैं। आपका एम्फोसिस किस पर है बेटा, इंटीजर पर। तो आंसर देखते हैं क्या है मार्किंग स्कीम में। आंसर इज टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, न्यूमेरिक एंड बिग इंट। ठीक है, 1 मार्क में ये है। हाफ मार्क फॉर ईच इंटीजर डेटा टाइप। आपसे कितने पूछे गए हैं बेटा, एनी 2। सो आप इनमें से कोई 2 भी लिखते हो, ठीक, तो आपको हाफ मार्क ईच मिलेगा। एक डेटा टाइप बताने का हाफ मार्क, दूसरा डेटा टाइप बताने का हाफ मार्क, टोटल मार्क्स 1। फाइन। सो देखना चाहोगे कहां से पिक किया है क्वेश्चन। चलते हैं, लेट्स मूव, और मैं आपको ले चलती हूँ पेज नंबर 127 पर, जहां पर ये टेबल गिवन है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का बच्चे। इंटीजर डेटा टाइप्स माने हैं, तो ये वाले सीबीएसई ने इंक्लूड करे हैं आपके। ठीक है ना, लिखें। ठीक बेटा, तो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द रिलेशनशिप इन विच 1 कॉलम ऑफ द प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड with all the columns of the associated table and vice versa. ठीक है, सो प्राइमरी की टेबल का जब एक कॉलम दूसरे टेबल में एसोसिएटेड, मतलब उससे रिलेटेड टेबल में इंक्लूड होता है, तो आपको पता है वहां पर वो फॉरेन की बनता है। तो अगर एक कॉलम की मेनी मैचिंग वैल्यूज आपकी सेकंड टेबल में है, तो ऐसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, वाइस वर्सा भी क्या कहते हैं, है ना। मतलब वाइस वर्सा मतलब 1 कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल, एंड वाइस वर्सा क्या होगा, ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल आर एसोसिएटेड विद 1 कॉलम ऑफ द प्राइमरी टेबल। मतलब चाहे ऐसे रीड करो चाहे ऐसे रीड करो। सो जब आप 1 से ऑल की तरफ रीड करते हो तो वो कहलाता है बच्चा 1 to many रिलेशनशिप, और जब आप ऑल टू 1 की तरफ रीड करते हो तो वो कहलाता है मेनी टू 1 रिलेशनशिप। मतलब एक ही रिलेशनशिप को अगर आप प्राइमरी की टेबल से देखोगे तो वो 1 to many जाएगा, और फॉरेन की टेबल से देखोगे तो वो मेनी टू 1 जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको दिलाएगा 1 मार्क। ठीक है ना। सो आपको रिलेशनशिप बतानी है, इसका आंसर है 1 to many रिलेशनशिप और मेनी टू 1 रिलेशनशिप। ठीक बेटा, देख लें कहां से गिवन है ये। ले चलती हूं मैं आपको पेज नंबर 138 पर। 138 पर देखो, आपको ये आ गया। वैसे इसका आंसर विद मेनी कॉलम्स होना चाहिए था, बट क्योंकि आपकी बुक से पिक हुआ है वी कैन नॉट चैलेंज इट। 1 column of the primary key table is associated with all the columns of the associated table, so this is 1 to many relationship। ठीक बेटा, तो अब हम चलते हैं
लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। ठीक, 1 मार्क में पूछा गया है आपसे। ठीक है, डिफाइन रिपोर्ट्स, देखते हैं क्या कह रहे हैं आंसर में। A report helps to display the data in a summarized manner. It is used to generate the overall work outcome in a clear format. You can create reports in the database. 1 मार्क में डेफिनेशन आएगा। अब बहुत ध्यान से देखो, डेटाबेस में हमारे पास बच्चे 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स होता है बेसिकली जब आप डेटाबेस के आउटपुट को दिखाते हो, ये रीड ओनली होती है ना। जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो जो बिल जनरेट हुआ वो एक रिपोर्ट है। ठीक है, रीड ओनली होगा, आप उसको पीडीएफ की तरह डाउनलोड कर लो या प्रिंट निकाल लो। सो बेसिकली रिपोर्ट इज यू आर गिविंग द, जैसे आपका एग्जाम होता है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, जो आपका ग्रेड कार्ड है, वो रिपोर्ट है, वो समरी देगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया। सो ओवरऑल वर्क आउटकम यानी आउटपुट को एक क्लियर फॉर्मेट में दिखाने को क्या बोलते हैं हम, रिपोर्ट, जो डेटा को समराइज्ड वे में प्रेजेंट करता है। हम डेटाबेस में रिपोर्ट्स बना सकते हैं, तो ये रिपोर्ट्स की डेफिनेशन हो गई। देख लेते हैं कहां पर है ये हमारे स्टडी मटेरियल में। जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूं, पेज नंबर 155 पर ले जाकर। पेज नंबर 155 पर आपके पास रिपोर्ट्स की डेफिनेशन बच्चे आ गई। अ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। आप देख रहे हो ना, बिल्कुल यही लाइन उठाई है मार्किंग स्कीम के अंदर। ठीक बच्चा, सो 1 मार्क मिलेगा अगर आप इसको करेक्टली डिफाइन करते हो। तो इन 6 1 मार्कर्स में से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ और सेक्शन सी के साथ मैं पार्ट 2 वीडियो में आपके साथ मिलूंगी बच्चा। तब तक आप ये पार्ट 1 अच्छे से देख लो, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, बिकॉज हम ये सीरीज बहुत शिद्दत के साथ करेंगे। हमें पता है हमारे टीचर्स के, आपके टीचर्स के एफर्ट्स आपके साथ हैं, बस अब आपको अपने स्किल्स को शार्पन करना है। तो ज़रूर देखना, पार्ट 1 देख कर रखना, तब तक मैं पार्ट 2 को लेकर आपके साथ आऊँगी। और सीबीएसई के पैटर्न को अच्छे से समझो बच्चे, बिकॉज दैट इज़ द की टू बीइंग getting good marks in your exam. So till we meet again, as I always write, God bless you and take care and happy learning. Stay smiling, stay blessed, bacha. Thank you.